Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture 5 of amines in chemistry. Till now we have discussed the structure of amines, the classification of amines into primary, secondary, and tertiary amines on the basis of a number of hydrogen atoms of ammonia that have been replaced by some alkyl or the aryl group. Then we also discussed in detail about the nomenclature of amines, that is both the IUPAC and the common name system. We talked about the rules as well as the examples of several types of amines. After that, we moved on to the preparation of amines using various techniques. So we discussed 6 methods of preparation of amines using different organic compounds, and also discussed, we did a lot of questions related to those preparation methods. At last, we focused on the physical properties of amines. So, इसमें we talked about the state, the color, the solubility, and the boiling point. As I told you, state and color, they are only for the awareness purpose. कोई इनके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, because they are the things that that can only be learned. ठीक है, इनका कोई explanation नहीं है proper. But solubility and boiling point trends there are very common in the examinations. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स दैट आर इम्पोर्टेंट। So, and then we will move on to a new topic. Okay, so this is the quick recap of what we did in the previous lecture. ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली solubility और boiling point पे आ रही हूँ। I'll only discuss some important points that you should be aware of. That's it. ठीक है, तो okay, so I will first write it here कि solubility in water is more important. क्योंकि talking about the solubility, like talking about the solubility in the organic solvents, जो इसके बारे में भी बात करी जाती है कि they are soluble in organic solvents like alcohol, ether and benzene. But trends are important in the case of solubility in water. ठीक है, तो इसमें the most important reason is कि because they can form hydrogen bonding with the water molecules. Hydrogen bonding with water molecules. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर, जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया का, अमीन्स का, दैट फॉर्म्स ए हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो N और H इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। So this is the reason. Now solubility decreases with the increase in the molar mass of the amine. ठीक है, तो हम जब मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो वी आर बेसिकली सेइंग कि जो चेन है अल्काइल ग्रुप की, और यू कैन से द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर देयर इन दैट कंपाउंड, दे आर मोर एज कंपेयर्ड टू द अदर वन। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे या फिर जब चेन बड़ी होगी, जब साइज बड़ा होगा कंपाउंड का, सो तो दैट दैट ग्रुप, दैट इज द हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट। ठीक है, जो जो कार्बन वाला पार्ट होता है, दैट इज द चेन वाला पार्ट, दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, सो दैट इज वाई वाटर से रिपल्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ दैट चेन, when we the solubility decreases when we increase the mass of the amine. So I'm writing it here. Solubility decreases with increase in molar mass. ठीक है, तो molar mass से मेरा मतलब है कि when the hydrophobic part of the chain is getting bigger. ठीक है, तो solubility decreases with the increase in the molar mass. Now another important thing is, ये तो हो गया जब हम अमीन्स को आपस में ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब चेन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है तो क्या रहेगा। नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग अमीन्स विद अल्कोहल्स, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अल्कोहल्स दे आर मोर पोलर देन अमीन्स। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल्स में ऑक्सीजन आटम होता है, ठीक है, और अमीन्स में नाइट्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन अल्कोहल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। But in the case of amines, the hydrogen bonding is between the hydrogen of the water molecule and the nitrogen of the amine. तो क्योंकि जो electronegativity is more in the case of alcohol, so that is why
The electronegativity difference, or we can say, is more in the case of alcohol. That is why alcohols are said to be more polar, and polar compounds they form the stronger intermolecular hydrogen bonds with amines. ठीक है, तो अगर हम solubility की बात करें, we can simply write it in this way कि alcohols का solubility is more as compared to amines of the same molecular mass. ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि if we are taking two different kinds of organic compounds और उनको कंपेयर कर रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी लेके, ठीक है, तो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि हम सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स को कंपेयर करें। सेम नहीं मतलब सिमिलर रेंज में होना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है ये भी अप्लाई हो जाता है, तो दैट इज वाई। तो अल्कोहल्स का सॉल्युबिलिटी इज मोर देन अमीन्स। एंड व्हाट इज द रीजन? पोलैरिटी। तो ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो आई एम्फेसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल और कंपाउंड मतलब अमीन के मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, ठीक है। इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देयर इज नो वाटर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ वो कंपाउंड है हमारे पास। तो जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं वो दो दैट इज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल है सेम कंपाउंड के, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल होगी एंड द हाइड्रोजन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, और दोनों अमीन्स हैं। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज मोर in the primary amines than in the case of secondary amines, as there are two hydrogen atoms in the case of primary, ठीक है। तो बेसिकली जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइटम्स होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो बॉन्डिंग भी ज्यादा होगा, इंटेंस होगा। तो दैट इज वाई इसका जो ट्रेंड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स होता है फॉर द केस ऑफ अमीन्स, इट इज सिंपली प्राइमरी के केस में ज्यादा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, secondary and then tertiary, and this is basically because of number of H atoms is directly proportional to intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइटम उतना ज्यादा बॉन्डिंग और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। BP boiling point. So this was all which was related to the solubility and the boiling point as their physical properties. Now I will move on. Before starting the chemical reaction, I want to move on to a very important chemical property, क्योंकि chemical reactions में chemical properties use होती हैं। यूज मतलब if you want to understand the concept, then आपको जो उसके पीछे का रीजन है वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर so for the same reason, before starting the chemical reaction, I will move on to the chemical property which is basicity. So we'll try to understand कि basicity of amines कैसे डिफाइन करी जाती है, या उसका जो लाइक जो ट्रेंड्स होते हैं इन द केस ऑफ बेसिसिटी, कौन से अमीन का ज्यादा होगा, कैसे चेंज होगा, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स द बेसिसिटी ऑफ एन अमीन डिपेंड, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद दैट। हाँ, तो नाउ व्हाई आर अमीन्स रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस यू शुड नो कि अमीन्स का जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन सी रीजन से होते हैं, ठीक है। व्हाई आर अमीन्स reactive, ठीक है। तो one important thing is the difference in the electronegativity of hydrogen and the nitrogen atom, ठीक है। हमें पता है कि जब भी कोई लाइक जब हम एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि जितना लाइक जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा बॉन्ड में उतना ज्यादा वो वीक होता है। पोलैरिटी मतलब जो चार्ज सेपरेशन हुआ होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक एटम और दूसरा एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल चार्जेस होते हैं एंड दिस इज नोन एज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कॉजेज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस विच मेक्स द बॉन्ड पोलर, और पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं और ज्यादा, एंड दैट कंपाउंड बिकम्स मोर रिएक्टिव,
ठीक है, so this is what we can say in simpler words. So this is one of the reason electronegativity difference between nitrogen and hydrogen. ठीक है, तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे कंपाउंड. Second important reason is the presence of unshared electron pair on the nitrogen atom. Unshared electron pair on nitrogen atom. ठीक है, वी डिस्कस्ड कि एक्चुअल में नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं. देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 3 of them are involved in bonding and that is why 2 are left. So these 2 they are in the form of the lone electron pair. ठीक है, also जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इन सिंपल टर्म्स वी कैन से द क्लासिफिकेशन, द 1 डिग्री, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन द अमीन, वो भी इफेक्ट करते हैं रिएक्शन को. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इफेक्ट सेवरल अदर प्रॉपर्टीज एज वेल. ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज की वजह से रिएक्शन में भी इफेक्ट होता है. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और यू कैन से टाइप ऑफ अमीन, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री. ठीक है, ये दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स which makes the amines reactive. ठीक है, now we will discuss some chemical properties which are like as we discussed in the case of physical one. और उसमें जो सबसे important chemical property है that is basicity. ठीक है, तो basicity हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो chemical properties में the most important thing is amines, they act as nucleophiles due to the presence of unshared electron pair. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं जिनमें एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स फॉर्म में बोल रहे हैं. तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट मेक्स द कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है, तो amines are, sorry for this, amines are nucleophiles and the reason is lone pair of electron on the nitrogen atom. ठीक है, now another important thing is basic character में. ठीक है, तो हम like in the lower classes also you must have studied कि जो हमारा बेसिक, जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है एसिड या फिर बेस का, वो यही होता है कि a compound is said to be acidic if it can donate the proton easily. ठीक है, प्रोटॉन मतलब H plus. If it can donate that H plus easily, it is said to be acidic. And any compound which can accept the H plus or accept the proton easily is said to be basic. तो ये सबसे simplest definition है acid और base की. और you know also you must have studied that acid plus bases because salt and water, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करता है वही प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट कर लेता है और सॉल्ट बना देता है. ठीक है, सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिमिलरली जब हमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना होता है, हम सिमिलर चीजें करते हैं. ठीक है, तो बिकॉज अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, दैट इज वाई दे रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट. ठीक है, नाउ सॉल्ट किस तरीके से बनता है, आई विल राइट डाउन द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, तो द जनरल रिएक्शन मैं लिखूंगी. तो दिस इज amine which is basically said to be a base. Then we have some acid, HX suppose, and then this will form a salt like this. Okay, so this is the salt that we are talking about. तो यहाँ पे जो R है वो अल्काइल ग्रुप पे हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. नाउ इफ यू वांट टू जनरेट द पेरेंट अमीन, मतलब ये अगर हमारे पास सॉल्ट है मान लो और हमें वापस से ये अमीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रिवर्सल चाहिए तो हम क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे एंड वी विल ट्रीट इट विद अ बेस लाइक NaOH. ठीक है, सो ये हमारा सॉल्ट था. व्हेन वी हैव सिंपली ट्रीटेड इट विद द बेस, इट कैन बी एनीथिंग लाइक NaOH. तो हमारा फाइनली जो हमारा पेरेंट अमीन था, वी हैव गॉट इट बैक. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज अमीन सॉल्ट्स. जैसे कि जो अभी सॉल्ट ऊपर बने हैं, सपोज
तो अमीन सॉल्ट्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी पहले व्हेन आई टोल्ड यू कि अमीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट अमीन सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूज नहीं करना है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड ऑल। एंड वन अनदर important thing is कि because amines have an unshared pair of electrons on the nitrogen, as I told you, so they behave as Lewis bases। ठीक है, सो लुइस बेस का डेफिनेशन भी जो डेफिनेशन होता है एग्जैक्ट, दैट इज कि एनी कंपाउंड विच इज हैविंग द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कॉल्ड एज अ लुइस बेस। ठीक है, तो ये लुइस बेस और बेस ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनके जो एक्चुअल डेफिनेशंस होते हैं वो अलग अलग होती हैं। बेस और एसिड्स जो होते हैं दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस और द डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, कि कितना इजीली एक्सेप्ट हो रहा है, कितना इजीली डोनेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो लुइस बेसिस और लुइस एसिड्स होते हैं दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट बिहेव्स एज अ लुइस बेस। और रीजन क्या होता है दिस। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स जो कि आगे केमिकल रिएक्शंस में यूज आएंगी, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शंस में बहुत यूज होता है, सो हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में विल स्टडी इन डिटेल। तो तो हाउ इट इज डिफाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कैरेक्टर हर एक चीज को लाइक कोई भी प्रॉपर्टी होते हैं ना उसे मेजर करने के लिए भी जनरली टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि डेंसिटी है तो कितनी है, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इवन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका टेम्परेचर क्या है। और सॉल्युबिलिटी में भी हम बहुत सारी चीजें होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब इन द बेस ऑफ इन द विद द हेल्प ऑफ नंबर्स आप किसी चीज को कंपेयर आराम से कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई फॉर डिफाइनिंग द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स आल्सो वी हैव टू यूज द नंबर्स। ठीक है, और वो नंबर्स क्या होते हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ देयर केबी एंड द पीकेबी वैल्यूज। ठीक है, अब नाउ ये डिफाइन कैसे होता है, तो in simple terms we can say that the magnitude of the basicity can be defined using kb और pkb values। ठीक है, और ये वैल्यूज निकलती कैसे हैं, सो बेसिकली दीज आर द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, कंसंट्रेशंस नोट होते हैं, उनको मेजर किया जाता है प्रॉपर्ली, और टाइम के साथ में कैसा चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, सो उसकी हेल्प से हमें ये केबी और पीकेबी वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो सपोज आई एम टेकिंग दिस जनरल रिएक्शन ऑफ अमीन प्लस वाटर, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वही वाला रिएक्शन है, अमीन प्लस वाटर, यहाँ पे आके सॉल्ट बन गया है और यहाँ पे OH माइनस है। ठीक है, नाउ व्हेन वी राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए वही होता है कि वी सिंपली हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस of the product divided by the product of the concentrations of the reactant। ठीक है, तो ये एक जनरल होता है जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट्स द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेंगे RNH2 एंड वाटर। ठीक है, आई एम राइटिंग इन डाउन कि ये जो चीज होती है ये कंसंट्रेशन होता है। नाउ दिस इज द नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। नाउ दिस बेसिसिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ केबी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम के ये वाला जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है व्हेन वी टेक इट टू दिस अदर साइड, this term will become K equilibrium into water concentration and this term complete is known as Kb। ठीक है, so this is Kb which can be written as this into the concentration of water। ठीक है, और अब हमारे पास क्या बचा,
ठीक है, बाकी ऑल द अदर टर्म्स आर सेम। ठीक है, सो दिस इज हाउ केबी इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। नाउ व्हाट इज पीकेबी? पीकेबी इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ केबी। ठीक है, नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरीथिंग विल चेंज, क्योंकि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो दिस नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि केबी जितना ज्यादा होगा उसका लोगारिथम भी उतना ज्यादा होगा। बट व्हेन वी पुट अ नेगेटिव साइन सो एवरीथिंग रिवर्सेस आउट। ठीक है, तो जितना ज्यादा केबी होगा पी के भी उतना कम होगा। ठीक है, तो मतलब वी कैन से दैट द लार्जर वैल्यू ऑफ केबी द स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, तो इन केमिस्ट्री हम बेसिसिटी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो इन लिटरेचर यू कैन सी कहीं पे भी, लाइक इफ इन गूगल ऑल्सो, अगर आपको किसी का भी बेसिसिटी पता करना है, आप सिंपली यू कैन चेक आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स। ठीक है, जैसे हमने आईयूपीए से नॉमेनक्लेचर किया था एग्जाम्पल, तो यू कैन फाइंड आउट द पीकेबी वैल्यूज ऑफ दोज दोज कंपाउंड्स एंड यू कैन चेक कि कौन से किसकी बेसिसिटी ज्यादा है किसकी कम है, एज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट यू कैन डू ऑन विद योर सेल्फ। नाउ सो दिस इज द थ्योरेटिकल थिंग। ठीक है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? व्हेन वी नीड टू कंपेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स यूज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, तो वी विल स्टडी इट लाइक वी विल डिस्कस फर्स्ट डिस्कस कि हाउ which fact on which factors the basicity actually depends, factors affecting basicity। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंडक्टिव इफेक्ट और द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सो आपको यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है व्हेन द अल्काइल ग्रुप्स और नॉट नेसेसरीली द अल्काइल ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हेन the different types of groups they transfer or they simply increase the electron density। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर थोड़ा शिफ्ट हो रहा होता है, हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, तो उस केस में हम इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट्स को डिफाइन करते हैं फॉर द एप्लीकेशन पर्पस, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो हम लाइक प्लस आई इफेक्ट वो होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होती है तो हम लोग उसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं और रिवर्स इज द केस फॉर माइनस आई। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे उनके पास में प्लस आई इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि दे कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम देमसेल्फ। ठीक है, तो वो अपने से दूर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और दूसरे ग्रुप को पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे हैव प्लस आई इफेक्ट, दे शो प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली, है ना? तो लाइक इफ यू वांट टू कंपेयर अमोनिया विद द एलिफैटिक और विद द अराइल द एरोमेटिक अमीन्स, तो हम क्या करेंगे कि एलिफैटिक अमीन्स दे विल बी द स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इट लीड्स टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि suppose you have the primary ammonia, sorry, primary amine, so this is RNH2। ठीक है, अब ये वाला जो R है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अल्काइल ग्रुप है, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और इस और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो हम जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, लुईस बेसिस, है ना? सो दैट इज व्हाई जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे बढ़ेगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफ वी वांट टू कंपेयर, तो सपोज करो हम अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं, तो अमोनिया के पास में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, और प्राइमरी अमीन के पास में एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन के पास में दो अल्काइल ग्रुप हैं,
और टर्शरी अमीन के पास में 3 अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, एंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना बेसिक होगा। ठीक है, तो वी कैन सिंपली से कि अगर हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो हम लोग इस कंक्लूजन लाइक वी कैन कंक्लूड कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिफैटिक अमीन्स दे विल बी द स्ट्रॉन्गर बेसिस एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, दूसरी चीज R3N will be the stronger base than R2NH than RNH2 and then ammonia। ठीक है, दिस विल बी द ट्रेंड ओनली, दिस इज नॉट अ जनरल ट्रेंड। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि इसको याद नहीं करना है। ठीक है, इफ वी आर कंसिडरिंग द इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, उस केस में वी कैन से कि हाँ ये ट्रेंड रहेगा। अभी हम लोग और भी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल रीच आउट टू अ कॉमन कंक्लूजन। ठीक है, ये है इंडक्टिव इफेक्ट के केस में if we are comparing ammonia and the other amines। ठीक है, सिमिलरली when we are talking, ये तो हो गया एलिफैटिक के केस में जब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एलिफैटिक। ठीक है, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, सो दे विल बी द वीकर बेसिस एज कंपेयर टू अमोनिया बिकॉज ऑफ द क्योंकि जो एराइल ग्रुप होता है, जो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप, दैट हैज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो जब वो अपनी, जैसे कि इफ आई ड्रॉ इट, ये सपोज करिए ये है हमारा एनिलीन। ठीक है, ये जो रिंग है इसका प्रॉपर्टी है कि दिस कैन इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, मतलब इस तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा बिकॉज ये रिंग के पास चला जाएगा, तो दैट इज वाई इसका बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो एरोमेटिक के केस में एरोमेटिक अमीन्स आर द वीकर बेसिस देन अमोनिया। अमोनिया स्ट्रॉन्गर होता है देन PHNH2। ठीक है, और इफ यू वांट टू अगर यहाँ पे 2 रिंग्स है सपोज करो, तो जो हमारा ट्रेंड होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा रिंग होंगी उतनी ज्यादा मतलब उतनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑन द नाइट्रोजन एटम और वो उतना वीकर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड्स है दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, सो दिस इज ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट और द रेजोनेंस इफेक्ट इन लाइक इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रीजंस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वी कैन डिस्कस। अच्छा, व्हेन अगर हम सिंपली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को देखते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीन्स, तो वी कैन सिंपली सी कि ये जो ट्रेंड है दिस इज नॉट फॉलोड बाय ऑल द अमीन्स। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीन्स के। So that is why where this another factor comes into play, and that is the structure. So another factor that on which the basicity depends is the structure। ठीक है, तो इसमें we can say कि there are different kinds जो कि स्ट्रक्चर में इफेक्ट करती हैं। हम लोग पढ़ेंगे about the stability of the cation। We will also study about the solvation effect, and we will also study about the steric hindrance। So these three factors are the other important factors जो ये इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा भी काम करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं विच एक्चुअली इफेक्ट द अमीन। ठीक है, तो इफ आई वांट आई कैन आल्सो स्प्लिट दिस अप, तो जनरलाइज नहीं हो पाएगा। व्हाट विल आई डू इज आई कैन सिंपली से कि द सेकंड फैक्टर कैन बी द स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन। ठीक है, सो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। नाउ केटाइन क्या होता है, केटाइन इज एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड।
ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज पार्ट उसका चला गया है, सो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड बन जाता है। और व्हेन सम प्रोटॉन हैज बीन एडेड टू अ कंपाउंड, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सो दैट इज केटाइन। अब केटाइन कहाँ से आ गया अचानक से? ठीक है, हम लोग तो अमीन्स पढ़ रहे थे ना। तो एज यू नो कि अमीन्स बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब, एज आई टोल्ड यू कि एसिड्स वो होते हैं विच कैन डोनेट द प्रोटॉन इजिली, और अमी बेसिस वो होते हैं विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन इजिली। ठीक है, तो आफ्टर amine has, because amine is basic in nature, so when amine has accepted a proton, तो वो जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज द केटाइन। ठीक है, तो अभी वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द एल्काइल अमीन, मतलब एलिफैटिक अमीन। ठीक है, उसके बाद में ऑल टुगेदर वी विल गो टू द एरोमेटिक अमीन्स, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। वी आर फर्स्ट कंसिडरिंग द एलिफैटिक अमीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन में वी विल सी कि the basic character of an amine, it will depend upon the ease of formation of the cation by accepting a proton from the acid। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा, मोर बेसिक विल बी द अमीन। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब व्हेन अमीन इज रिएक्टिंग विद एन एसिड, तो वो उसे प्रोटॉन ले लेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ केटाइन। ठीक है, तो द मोर स्टेबल द केटायन विल बी, द मोर बेसिक इज द अमीन। ठीक है ना, इसके पीछे थोड़ा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, so I will write it down here. More stable the cation, more basic is the amine. Okay. Now I will write down the general reaction कि if you want to compare ammonia with some other kind of a amine. ठीक है, तो this is RNH2 and this is the lone pair। ठीक है, अब जब प्रोटॉन आएगा, तो हमारा जो फाइनल केटाइन बनेगा वो कैसे बनेगा? ये प्रोटॉन जो होगा वो यहाँ आके आएगा, एंड द फाइनल कंपाउंड, द cation that we are talking about will be this with a positive charge on the nitrogen atom। ठीक है, similarly if we are talking about ammonia plus proton, so this will be similar NH4 plus। ठीक है, तो these are the cations। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा केटायन उतना ज्यादा बेसिक होगा अमीन, करस्पॉन्डिंग अमीन। ठीक है, तो हमें सबसे अब हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक आउट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज केटायंस व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड, कि कौन सा केटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप होता है इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, एज आई टोल्ड यू कि हम बोलते हैं ना प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो वैसे ही जो प्लस आई इफेक्ट था, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस electron releasing nature of the alkyl group, it pushes the electrons, it shifts the electrons towards the nitrogen। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, एंड thus it makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जितना, सपोज करिए ये आर लगा हुआ है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर ऑलरेडी है नाइट्रोजन के ऊपर, दिस विल बी मोर अवेलेबल टू दिस प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को आके लगने के लिए लोन पेयर की जरूरत है। ठीक है, नाउ लोन पेयर इज मोर अवेलेबल टू दिस प्रोटॉन, एंड सो उतना आसानी से ये हमारा कैटायन बन जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ये जो हमारा कैटायन बना है, इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्जन भी हो रहा है चार्ज का। लेकिन यही चीजें जो है अमोनिया के केस में, जो अमोनियम आयन है उसके केस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन, हमारा जो कैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो दैट इज वाई उस उसके कंपैरिजन में दिस कैटायन जो बना है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, और दैट इज वाई एलिफैटिक अमीन दे आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। नाउ अब ये तो ये हो गया प्राइमरी अमीन के बारे में। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑल्सो, तो द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और उतना ज्यादा
आसानी से हमारा केटायन बन पाएगा और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, so that is why if we talk about the trend, the basic nature, then it will be tertiary, secondary, primary। ठीक है, so tertiary are the most basic। ठीक है, अच्छा ये अब अगेन यू विल से कि अभी भी आप इससे पहले भी एक ट्रेंड आपने लिखा था, है ना। अगेन आई वुड से कि दिस इज ओनली द केस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन। ठीक है, अगर हम इस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी द ट्रेंड। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि द फेज ऑल्सो डिपेंड्स। मतलब ये जो ट्रेंड है, दिस इज ओनली फॉर द केस ऑफ गैसियस फेज। ठीक है, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। आई विल रादर यूज रेड बिकॉज, ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ये सिर्फ गैसियस फेज में लगता है, लगेगा। और रीजन क्या है, बिकॉज इन द एक्वा स्पेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्वेशन इफेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी सॉल्वेशन इफेक्ट फैक्टर। ठीक है, तो now what happens in aquaspace? Aquaspace मतलब when amine has a solution is in a solution with some water or simply we take it water। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है एक्वा स्पेस में कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो जैसे हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे थे उस केस में, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो सॉल्वेशन होने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए सॉल्युबल होने के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन है, जो ये पहला वाला था प्राइमरी अमोनिया के केस, प्राइमरी अमीन के केस में, इट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ द एल्काइल ग्रुप, जैसा पहले हमने डिस्कस किया। मतलब जो चीज पहले थी गैसियस फेज में वो तो हो ही रही है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेशन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द सॉल्वेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन इन द एक्वा स्पेस जब पानी भी आता है, तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, हम वी विल कंसीडर द प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो, प्लस we will also look to the solvation with the water molecule। ठीक है, तो एक्वा स्पेस में हमें ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्वेशन के बारे में लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इज कि द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन। ठीक है, तो जो हमारा ये कैटायन बना है, तो उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड द लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, हम जो भी हमारा कैटायन बना है उसका जो साइज अगर ज्यादा बड़ा है, तो सॉल्वेशन उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज हमारा बड़ा है, वी आर आई मीन आई जस्ट वांट टू से कि अगर टर्शरी अमीन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी 3 अल्काइल ग्रुप्स, राइट। और 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो टर्शरी अमीन के केस में द साइज ऑफ द आयन इज बिगर। ठीक है, तो देयर विल ओनली बी वन सिंगल हाइड्रोजन एटम इन द केस ऑफ टर्शरी अमीन। तो वो सिंगल हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद वाटर मॉलिक्यूल। So there will be least solvation in the case of uh, this tertiary। तो सॉल्वेशन का मतलब है वी कैन सिंपली से कि कितना ज्यादा मिल रहा है पानी में, अमीन का मॉलिक्यूल कितना ज्यादा सोल्यूबल हो पा रहा है पानी में, दैट इज सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। ठीक है, तो टर्शरी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होती है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि सॉल्वेशन भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो you can simply summarize it, more the size of the cation, lesser will be the solvation। ठीक है, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना सॉल्वेशन आसान हो पाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल दे आर एबल टू उसके आसपास ज्यादा रह पाते हैं और प्रॉपरली सोल्यूबल हो पाता है वो कंपाउंड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से सिंपली कवर दैट मॉलिक्यूल अगर वो छोटा होता है कंपाउंड तो। एंड लेसर सॉल्वेशन का मतलब है लेस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, लेस स्टेबलाइजेशन मतलब लेस स्टेबिलिटी ऑफ आयन, और इसका मतलब होगा लेस बेसिसिटी। ठीक है, क्योंकि बेसिसिटी क्या बोलती है, हमने हमने ऊपर देखा कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा कैटायन उतना ज्यादा बेसिक होगा।
ठीक है, तो जब यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, तो वहाँ पे बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वी कैन सिंपली राइट डाउन द टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेशन थिंग, वी कैन सिंपली से कि प्राइमरी के केस में बिकॉज क्योंकि यू हैव आर एन एच टू, है ना, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वी आर टॉकिंग अबाउट द केटायन, यू विल हैव आर एन एच थ्री प्लस, तो बेसिकली यू आर हैविंग थ्री हाइड्रोजन आइटम। तो तीन हाइड्रोजन आइटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सेकेंडरी में यू विल हैव ओनली टू हाइड्रोजन आइटम जिसपे कि आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो दैट इज वाई वी कैन राइट इट डाउन। 1 डिग्री का जो आयन बनेगा, फिर वी हैव 2 डिग्री आयन, एंड देन वी हैव 3 डिग्री आयन। ठीक है, और ये ट्रेंड जो है वो किस लिए है? सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन का ट्रेंड है, और वी कैन से द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब इसका मतलब हमारा प्राइमरी आयन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और दैट इज वाई प्राइमरी जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। इसके हिसाब से अगर हम बेसिसिटी का ट्रेंड लिखते हैं तो भी सेम सेम ट्रेंड आएगा। अमीन, ये जो है ये बेसिसिटी का है। ठीक है, तो नाउ इफ यू कंपेयर, आई एम ऑल्सो राइटिंग इन विद रेड ओवर हियर, इफ यू कंपेयर द थर्ड एंड द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द गैसियस फेज एंड द एक्वस फेज, तो यू कैन सी कि जो ट्रेंड है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। ठीक है, पहले वाले में क्या था? फॉर द गैसियस फेज द टर्शरी आर मोर बेसिक, एंड फॉर द aqueous phase the primary are more basic। ठीक है, तो ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं ये आपस में काउंटर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज नॉट दैट इजी, एज आई टोल्ड यू कि कभी भी अभी डायरेक्टली हमें इसको याद नहीं करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की याद कर लिया कि दिस विल बी द ट्रेंड। ऐसा नहीं है, बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर प्लेइंग द रोल। So we have discussed three factors over here. Now one more is left, that is the aesthetic hindrance वाला part। ठीक है, so one that is the last one। So for the case of aliphatic amine, ठीक है, so when we'll discuss the aesthetic hindrance, उसके बाद we will combine all the three। ठीक है, जो जो भी हमने सारे इफेक्ट पढ़े उन सबको कंबाइन करके वी विल रीच टू अ कंक्लूजन कि जो एक्चुअल में जो इफेक्ट होता है, जो बेसिसिटी होती है उसका क्या ट्रेंड होता है इन द केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अमीन। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डिनोट करती हैं। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। So this was all for today। Thank you।